के लिए मैंने आपको अभी के सामने डाल दिया। Hello, just hello. Hello, just am I audible? Yes, you're audible. Okay, start. So now we are going to start. गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर पालिका के द्वारा आयोजन किए गए करियर गाइडेंस वेबिनार 2.0 में मैं ऋतिक आपका स्वागत करता हूं। कोरोना जैसे महामारी के कारण
पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण सभी विद्यार्थियों में करियर के बारे में बहुत सारे प्रश्न निर्माण हुए। करियर के बारे में निर्माण हुए प्रश्नों का जवाब देने और उसका योग्य रूप से समाधान मिलने हेतु एबीवीपी भिवंडी महानगर द्वारा पिछले 2 साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 7 जून 2021 से लेकर 13 जून 2021 तक इस साल के करियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिर एक बार आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज वेबिनार का चौथा दिन है। आज का विषय है करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिल्म इंडस्ट्री। यह है आज इस विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु हमारे साथ श्री अंकुर काकतकर सर उपस्थित है। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस अंकुर काकतकर सर. His education qualification is Master in Communication and Media Studies from University of Pune. His recent works are directed Patiala Babes as a super popular show on Sony TV, directed Dil Jaise Dhadakne Do on Star Plus. Work experiences on web performance are show created, written and directed Gondia Alaye, a 10-episode web series for Z5. Creative director for Mr. and Mrs. Sadachaya. Directed a film named Premasati coming soon, Dhol Tasha, LBW. Directed first ever musical play in Marathi named Yere Yere Paisa. Worked as a director television, worked in the capacity of a director for a show on Z Marathi named Baji, 146 episodes. Worked in the capacity of a director for a show on Z Yuva Marathi named Itej Tak Dambu. Worked in the capacity of a director for Southern India. Worked in the capacity for director for a reality game show on Sam Marathi named Limbu Timbu. As an episode director, he also worked in ZTV Marathi named Discover Maharashtra. He also worked as a director for a show ETV Marathi named Ardhangini. He also worked as a director for a weekly television epic Raja Shiv Chhatrapati Maharaj for a multi-camera talk show for Mr. Nitin Desai. Worked in the capacity of a director for a reality game show on ETV Marathi named Sasu Soon Aflatun. His some international experiences are he worked for 8 events in Dubai on multi-camera setup as an online producer. Worked with CIT Media Dubai as an online producer as well as director multi-camera programs for more than 3 months. He has also directed some Marathi film. Worked in the capacity of a technical director for Prem Prem Asta for a Marathi film. Worked in the capacity of a co-director for film Aghat. He also worked as an associate director for film Made in China. He also worked as an associate director for a Marathi film Tuja Manat. In some Marathi television serials also he has worked as a chief assistant director for renowned television weekly on Star Plus Sonpai. He also worked as a chief assistant director for a serial on Z Marathi. First assistant director for a mega serial Warrior, The Great Chhatrapati Shivaji. He also worked as an assistant director for a musical program, Sadaj Gangadhar, on ETV Marathi. In ad films, he directed an ad films for Champion UPS and Inverter India. Worked as a chief assistant director for an ad film of Mahindra and Mahindra Tractor India Limited. In education, we worked as a visiting faculty for visual communication, filmmaking techniques and communication skill for DigiLocal School and Animations India. He worked as a visiting faculty for direction for films and TV at Indra Schools of Communications, working as a filmmaking mentor, conduct workshop for SIMC. Hello, sir. Hi everyone. Hello. I would prefer my video to be on. Sir, before you on, I want to give some instructions, sir. Sure. Yes, sir. Some instructions are there. सत्ता शुरू करने से पहले कुछ सूचना है, उस पर ध्यान दीजिए। कार्यक्रम के बीच में कोई भी अनम्यूट करके प्रश्न न पूछे। प्रश्न पूछने के लिए सबको अंत में समय दिया जाएगा। कार्यक्रम के बीच में कोई भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा। जिनको कोई भी प्रश्न हो वो मैसेज में सेंड कर सकते हैं। नमस्ते सर। Hello. Hi. Yes, sir. Good evening.
So our first question is हम्म, फिल्म फिल्म इंडस्ट्री होती क्या है? अब इसका जवाब सही वाला दूं, फिल्म इंडस्ट्री वाला दूं, या हमारा जो जवाब होता है वो है ये एक दिस इज अ मैजिकल वर्ल्ड. दिस इज अ वर्ल्ड विच इज not present, but you have to create it. Uh, for me, film industry is a way of expression. It is very practically speaking. We are entertainers. We are storytellers. We are dream merchants. I would say हम सपने बेचते हैं. जो भी आपको टीवी पे दिखाई देता है, जो भी आपको 260 रुपए खर्च करके आप एक अंधेरे रूम में जाके बैठते हो और आप वो देखते हो, वो हम सपने बेचते हैं. वो कुछ था. अब रियलिटी एक ऐसा शब्द है. रियलिटी इस शब्द में जाने का एक रास्ता है, बाहर निकलने का कोई नहीं. बिकॉज हम आजकल बहुत इजीली एक वर्ड यूज करते हैं, अरे ये तो रियलिटी सिनेमा है. अरे रियलिटी के साथ साथ आप सिनेमा ये भी जोड़ रहे हो, तो रियल सिनेमा ऐसा कुछ होता नहीं है. हाँ, रियलिटी के बहुत से पहलू हैं, रियलिटी के बहुत से डायनामिक्स हैं, रियलिटी के बहुत से लेयर्स हैं, रियलिटी के बहुत से एंगल्स हैं. जैसे हम उसको सर रियलिटी कहते हैं, या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी कहते हैं. है वो दीज ऑल आर डायनामिक्स, बट सिनेमा कैन नेवर बी रियल. बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है. अब यूजुअली हम कहते हैं कि हमें बताया जाता है फिल्म इंडस्ट्री एक मायाजाल है. भाई मायाजाल तो होगा ही ना, बिकॉज it is so addictive. It is so it has got a different pulling force into it. I'll tell you why. Because वहां पे आपके मन में जो है उसे आप खुली तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो. You can be yourself. If you decide to be what you want to be, you can easily be what you want to be in the film industry. And film industry अगर हम इसका उन दोनों शब्दों का अर्थ ठीक तरह से ले लें, तो एक ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो फिल्में बनाता है. it is that simple. So for me, film industry is my parallel world. Film industry is where I am comfortable. Film industry is my home. Film industry is my expression. Film industry is my book. Film industry is my pen. Film industry is my living. Film industry is my bread and butter. Film industry is the one which runs my house, gives me money, gives me peace, gives me expression. Because my passion, I'm a fortunate man. I could convert my passion into profession. So for me, film industry, हाँ, हम एक वेबिनार यहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत से प्रश्न मन में आते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा पोएटिक बात किए जा रहा है, या फिर ओ माय गॉड हम यहाँ पे करियर करने आए थे, ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है. नहीं, मैं अलग बात नहीं कर रहा हूँ. जब तक आपका कन्विक्शन आपके एक्सप्रेशन से जुड़ नहीं जाता, तब तक आप यहाँ आने की कोशिश ना करें. क्योंकि यहाँ आने के लिए जिसके अंदर वो कन्विक्शन है, जिसके अंदर वो एक्सप्रेशन है. सी, let's be very clear. I cannot be an engineer. I could not be a doctor. I could not be a chartered accountant. I could not be a software professional. I tried being a marine engineer because sea is one thing which pulls me towards it, but I could not because मेरा मन वहाँ पे स्थिर नहीं हुआ.
I wanted to be a creator. I became a creator, and I am a certified learned फिल्म मेकर. जैसे जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई सीए होता है, कोई आईटी प्रोफेशनल होता है, जिस तरह आप आपके 4 साल इस वोकेशन के लिए इन्वेस्ट करते हो, आई हैव इन्वेस्टेड माई 18 years of career plus 4 years of education in mastering this art called filmmaking. And this is brilliant. I could do that because I had that conviction to convince my parents, tell them about it, show them my conviction. So for me, film industry is a manufacturing unit which makes films. जहाँ पे see कैसा है? This is the for the first time in the entire history of cinema, which is almost like now 1913 में पहला सिनेमा अपने यहाँ बना था. This is the first time the film industry is facing such hard times, and it's okay. Film industry, as filmmakers and creators, we will absolutely come out of it, and we will entertain you people. So this is what film industry is for me. Okay, sir. Yeah. Now, sir, our second question. Hmm. फिल्म इंडस्ट्री के अलग अलग फील्ड्स पर पढ़ाई करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस है, उनके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ नहीं, देश के बाहर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इंडिया के बारे में बात करते हैं, बिकॉज वी हैव द बेस्ट फिल्म मेकिंग, फिल्म टीचिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एफटीआई. एफटीआई का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो अभी जुलाई अगस्त में होगा. आप अगर पेपर देखते होंगे तो उनका इनटेक का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है. वो एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें एक वर्कशॉप किया जाता है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है. सो 3 लेयर एंट्रेंस एग्जाम वहां पे होती है. फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में कम्युनिकेशंस कोर्स हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशंस कोर्स हैं. बैचलर्स के लिए भी आज बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन मीडिया है. तो ऐसे बहुत सारे ये हैं जो हम या फिर सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में है. यू हैव एशियन फिल्म एकेडमी इन साउथ ऑफ इंडिया. जामिया मिलिया इस्लामिया है दिल्ली में. ये ज्यादातर मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे फिल्म मेकिंग का भी एक स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है. लेकिन एफटीआई का ऐसा है कि एफटीआई इज वेरी फिल्म सेंट्रिक, या एसआरएफटीआई, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, इज वेरी फिल्म सेंट्रिक. अगर हम बात करें कि अब्रॉड कहाँ पे जा सकते हैं, तो न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल है, ऑक्सफोर्ड में फिल्म मेकिंग का कोर्स है, वैंकूवर में वैंकूवर फिल्म स्कूल है कनाडा में, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे इंटेक्स हैं फिल्म मेकिंग स्कूल कोर्स के लिए. और यहाँ पे अलग अलग पहलू आपको सीखने मिलते हैं. जब आप एक फिल्म इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको चॉइस करना पड़ता है, या आपको पहले से तय करना पड़ता है कि फिल्म मेकिंग का कौन सा डायनामिक मुझे सीखना है. मुझे डायरेक्शन सीखना है, मुझे स्क्रीन राइटिंग सीखना है, मुझे सिनेमाटोग्राफी सीखना है, मुझे एडिट सीखना है, या मुझे साउंड सीखना है, मुझे आर्ट डायरेक्शन सीखना है, या फिर मुझे मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग सीखना है. ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के पहलू वहाँ पे आपको सीखने मिलते हैं. हाँ, जिस तरह जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की कि जिस तरह एक इंजीनियरिंग कोर्स के लिए या फिर मेडिकल कोर्स के लिए जितना कन्विक्शन और जितना हार्डवर्क आपको पुट इन करना पड़ता है, उतना ही कन्विक्शन और उतना ही हार्डवर्क, आई वुड से उससे थोड़ा ज्यादा ही हार्डवर्क आपको पुट इन करना पड़ता है. एंट्रेंसेस आर नॉट इजी, but they are basically based on 2-3 things. One is general knowledge, one is creative writing, and one is creative perception. How are you perceiving things creatively? So ऐसे 3-4 पहलू होते हैं, और ये इंस्टीट्यूट्स हैं. FTI is the best world's best institute for getting educated in film and television. फिर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में, जहाँ से मैंने मेरी मास्टर्स डिग्री फिल्म मेकिंग में की है.
और यहाँ पे बेसिकली आपको सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस है, सैम सी लवड़े है। और इससे पहले अगर आपको फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, या फिर आपने वर्कशॉप्स किए हो एंट्रेंस से पहले, या फिर आपने कुछ बनाया हो, अगर आपने वर्कशॉप्स किए हैं, थोड़ा सा सर्टिफिकेशन लिया है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपके आपके पर्सपेक्टिव में एक अलग डायनामिक आ जाता है, अलग एक एंगल आ जाता है। अगर आपने, क्योंकि बेसिकली इन वर्कशॉप्स आप इन डेप्थ नहीं तो यू आर एटलीस्ट इंट्रोड्यूस टू द मीडियम। सो वर्कशॉप्स करके, एक छोटी सी एक्टिविटी करके आप अगर इन एंट्रेंसेस में और इन इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, तो इट विल एब्सोल्युटली बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूटिव स्टेप फॉर यू टू गेटिंग इनटू द इंस्टीट्यूट। ओके सर, थैंक यू। सर, आवर थर्ड क्वेश्चन इज टू दैट इस फील्ड में जाने के लिए हमें 10वीं 12वीं से किस तरह का एजुकेशन लेना चाहिए? सी, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज्ड कौन सा एजुकेशन लेना चाहिए, ऐसे कोई ये कोई मुद्दा नहीं है। आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करके भी एफटीआई में एडमिशन ले सकते हो। तो आपको ऐसा एजुकेशन लेना है जिसमें आपको मजा आ रहा हो, फिर वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो। अगर आपको करना है तो आप साइंस से भी टाइम निकाल सकते हो, कॉमर्स से भी निकाल सकते हो, आर्ट से भी निकाल सकते हो। आपको कौन से डिपार्टमेंट में फिल्म मेकिंग के काम करना है, ये आपको पहले तय करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टिक मार्क, यू विल हैव टू what kind of liking you have, what kind of an inclination you have, what departmental inclination you have. You might be liking photography. So for photography, physics is a great medium. Knowing light is a great medium. Physics is basically all about, photography is all about angles, what do we say, composition, about learning about light. Then आपको साइंस है, फिजिक्स लिया है आपने, तो एक एडवांटेज है, समझने में चीजें ज्यादा इजी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमर्स का बंदा सिनेमेटोग्राफी नहीं कर सकता, या फिर आर्ट्स का बंदा या बंदी सिनेमेटोग्राफी नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एजुकेशन जरूर लेना है। एक ही मैं आई वुड लाइक टू अंडरलाइन वन थिंग वेरी क्लियरली हियर, कि यार मैं उठा और क्या करे यार, चलो यार फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि आप एक टाइम पास के लिए इसको आप ये कर लें। दिस इज मोर देन 7,000 करोड़ इंडस्ट्री। तो आप सोचिए कि अगर 7,000 करोड़ इंडस्ट्री में आपको स्टेप इन करना है, तो आपको कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एजुकेशन लेना ही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट ही करना है। उससे होता यह है कि उससे चीजें समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। You start absorbing things very easily, you start knowing things very easily, you start getting used to things very easily. You automatically get into a discipline of getting educated in a certain industry, अगर आपने आपका ग्रेजुएशन पूरा किया हो। और फैकल्टी, ग्रेजुएशन फैकल्टी कोई भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। ओके सर, थैंक यू। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इस फील्ड में करियर बनाने के लिए इस फील्ड के किसी कोर्स की सही में जरूरत है क्या? यानी एग्जाम्पल के मेनन या अक्षय कुमार या रजनीकांत, इन्होंने किसी कोर्स की पढ़ाई नहीं की थी, फिर फील्ड में पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है क्या? बिल्कुल, इस फील्ड में पढ़ाई करके आने का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो आपने 3 नाम अभी लिए, के मेनन, अक्षय कुमार, रजनीकांत जी, आपको शायद ये पता नहीं है कि अक्षय कुमार इज ट्रेन्ड इन एक्टिंग एंड मार्शल आर्ट्स। के मेनन वाज अ पार्ट ऑफ एनएसडी रेपरेटरी, और वो वहां पे जाके एनएसडी रेपरेटरी में जाके प्रॉपरली एक्टिंग का 2 साल का रेपरेटरी कोर्स करके आए हुए हैं। रजनीकांत जी जैसे हम ये कहानियां सुनते हैं कि अरे वो एक कंडक्टर थे और
जाके सुपरस्टार बने, ऐसा नहीं होता है दोस्त लोग। ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि आप नसीब पे पूरा दांव खेलो, नहीं। The effort you put in to make a career here is far more greater, griever, harder than what you put otherwise, because यहाँ पे कोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप एक्टिंग के वर्कशॉप्स करो, आप डायरेक्शन के, मैं कितने वर्कशॉप्स लेता हूँ यार। I have taught around, like my count till today is what 2500 students I have mentored till now, and they're everyone of them is doing great. कोई अभी FTI में सीख रहा है, कोई मेरे एसोसिएट बने, फिर जाके आगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बने, एक्टर्स बने। ये सब होता रहता है, मतलब लेकिन हाँ, करियर एक कोर्स करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और होना भी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज किया है, गोंडिया आला है, डायरेक्ट किया है, उसके लिए आपने किस तरह स्ट्रगल किया, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? It was 17th February 2017. Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi mentioned in his speech that freedom struggle ये कोई एक फैमिली का जिम्मा नहीं था। यहाँ पे बहुत लोगों ने खून बहाया है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। हम हमेशा गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, इनके नाम लेते आए हैं, सिखाते आए हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पुणे में स्थित 3 भाई जिनका नाम चापेकर बंधु था, उन्होंने भी एक ब्रिटिश ऑफिसर का वध किया, और वहां से एक अलग प्रकार के स्वातंत्र संग्राम की शुरुआत हुई। ये स्पीच मैंने सुना, मैं पुणे का हूँ बेसिकली, तो मैंने बोला यार हाँ, चापेकर्स के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन एक पैराग्राफ है, अनफॉर्चुनेटली एक पैराग्राफ था छोटा सा। फिर मैंने मेरा रिसर्च शुरू किया। अब रिसर्च जब करते हैं तब रिसर्च पैसा नहीं देता, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं सुबह 7 से लेके रात को 10 बजे तक शूटिंग करता था। 10 बजे घर आता था, खाना बनाता था, और 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक रिसर्च करता था। बुक्स यहाँ से मिलाना, हाई कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स लाना, वो पढ़ना, उसके नोट्स ये करना, और ये मैंने 730 दिन किया। I invested my 730 days in the research before I could script or present or make a good presentation on how a series I am seeing it. And 730 दिन जब मैंने इन्वेस्ट किए उसमें, तो 730 दिन के बाद मेरा रिसर्च मटेरियल रेडी हुआ। फिर आगे मुझे और 4-5 महीने लगे प्रेजेंटेशन तैयार करने में। मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किए, और Z5 में जाके जब मैंने प्रेजेंट किया, तब ये पहला शो होगा, ऐसा होगा जो शायद 6वें मीटिंग में ये अब शो अप्रूव था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता था कि मुझे इस सीरीज में क्या दिखाना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये पता था कि इस सीरीज में मुझे क्या नहीं दिखाना है। सो माई ग्राउंड वर्क बेसिकली वॉज रेडी बिकॉज ऑफ द रिसर्च आई हैड डन। सो स्ट्रगल तो बहुत थे। शूटिंग के टाइम मैंने पूरा शूटिंग 12 जून 2019 से लेके 31 जुलाई 2019 तक किया है, और 14 अगस्त को मेरा एपिसोड मेरे सबमिट हो गए थे। एंड 2019 की बारिश आपको अगर याद है तो इट वाज द ग्रीवियस, बहुत 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 बारिश हुई थी, और मैंने पूरी सीरीज मेरे बारिश में शूट की है। तो स्ट्रगल था, लेकिन मजा था उस स्ट्रगल में। It is like a tattoo. It is doing such kind of a series is like having an addictive pain. Pain है, लेकिन वो आपको you want that pain to be there more and more. So yes, it was absolutely
a hard series and a hard nut to crack. But I had a lovely team. I had a great team with me, which had put their heart, soul, blood, and sweat into the series, and that's the reason we could achieve it. We almost shot 410 minutes of edited content in 36 days. और मैंने 14 दिन में पोस्ट किया है. So I had a great kicked up team. So I did not find it difficult to. But yes, there was a struggle, and it was lovely. ओके सर, थैंक यू. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूवीज बनाने में अच्छा करियर है या शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज? भाई ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि मम्मी अच्छी है, पापा अच्छे हैं, दादी अच्छी है कि अब खुद अच्छे है. तो जो करियर फिल्म मेकिंग में है वो करियर वेब सीरीज में है, वो करियर सीरीज में है, वो शॉर्ट फिल्म्स में है. You will have to plan. You will have to know what you like. You will have to exactly find out what is your mode of expression. ये हो सकता है कि आपका मोड ऑफ एक्सप्रेशन म्यूजिक वीडियो हो यार. यू नेवर नो. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब अच्छा है और सब उतना ही बुरा है. तो अब जैसे मैंने गोंदिया जब मैंने की, उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि I am getting quite comfortable in the web space. मुझे एक ऐसी चीज करने मिली है जो I have an expression to it. So ये ऐसा है कि it is very hard for you to judge ये क्या है. Yeah, so on that part, it is very it's a very difficult thing to tell कि हाँ अब जैसे मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ वेब स्पेस में. So I love the web space. I love writing web series. I love doing web series. लेकिन I love and I enjoy making films also. Films are very near and dear to me. लेकिन अब सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सब्सक्राइब्ड साल भर के लिए नेटफ्लिक्स और अमेजॉन है. तो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एडाप्टेशन. नए मीडियम्स को एडाप्ट हो जाओ. फाइनली इट इज टेलिंग स्टोरीज एंड क्रिएटिंग स्टोरीज, एंड it is more of having fun to create stories, and more of having a liking of telling stories. जैसे मैंने बताया कि who are we are dream merchants, we are storytellers. So आपको कौन से मीडियम में स्टोरी बतानी है ये आपको डिसाइड करना है. आपको किसमें मजा आ रहा है. शायद आपको इसमें मजा आ रहा हो कि आपके मोहल्ले के 50 बच्चों को आपने एक साथ बिठा के आपने उनको कहानी बता दी. शायद उसमें मजा आता हो. You will have to decide which medium is making you comfortable. मैंने नाटक भी किए हैं, मैंने टेलीविजन सीरियल भी किया है, मैंने नॉन फिक्शन शोज भी किए हैं, मैंने फिल्म्स भी किए हैं, मैंने वेब शोज भी किए हैं, और करियर के शुरुआत में मैंने शादी के शूटिंग भी किए हैं. तो और मैंने दुबई में जाके मल्टी कैमरा सेटअप पे मैंने ऑनलाइन प्रोड्यूसर करके काम भी किया है. मुझे फिल्म करते हुए बहुत मजा आया. लेकिन टेलीविजन एक ऐसी चीज है जिससे मुझे प्यार है, और वेब में मैं कंफर्टेबल हूँ. नाटक से तो मैं सीखा हूँ. सो मैं चारों मीडियम में खुद की लॉयल्टी बनाए बैठा हूँ. तो यू विल हैव टू डिसाइड कि एग्जैक्टली व्हाट इज गिविंग यू दैट कंफर्ट ऑफ बीइंग अ मेकर. ओके सर, थैंक यू. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फिल्म इंडस्ट्री यानी सिर्फ एक्टर या डायरेक्टर नहीं, बल्कि उसमें और कई सारे ऑप्शंस रहेंगे. तो क्या आप उनमें से कुछ फील्ड्स के बारे में हमें बता सकते हो? बिल्कुल. आपको किस फील्ड के बारे में जानना है? क्योंकि एक्टर एक ऐसी चीज है जो दिखती है,
डायरेक्टर एक ऐसा बंदा है जो ये ही इज बेसिकली द कैप्टन ऑफ द शिप। सो उसके उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नजरिए से जो उसको दिखा है वो एक दिखाने वाला बंदा है। तो डायरेक्शन है, साउंड एक बहुत ज्यादा प्यारा डिपार्टमेंट है जो बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड है, लेकिन साउंड डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में है। डीओपी एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको हर दफा टेक्निक सीखनी है, सिर्फ टेक्निक नहीं सीखनी है, तो आपको वो मशीन सीखना है, आपको रेजोल्यूशन सीखने हैं, पिक्सल सीखने हैं। अब तो यार आपके इसमें एक्चुअल फिल्म नहीं है, मैंने तो एक्चुअल फिल्म पे भी काम किया हुआ है, तो वो है। कॉस्ट्यूम्स एक बहुत बढ़िया एक डिपार्टमेंट है जो कॉस्ट्यूम्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस India was the first Indian to win an Oscar was from the costume department. Bhanu Athaiya. She's no more now. She won it for a film called Gandhi. Then makeup and hair एक department है, sound है, editing है, DI है, डिजिटल इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे फिल्म फाइनली कलर की जाती है, या फिर एक बहुत ही प्यारा एक ये है जिसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, जो लॉजिस्टिक्स और आपका पूरा मैनेजमेंट देखता है। तो बहुत सारे फिल्म, टेलीविजन, ड्रामा, वेब, टीवी, एनीथिंग यू टेक, इट इज ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप एक चीज करना शुरू कर दो कि जैसे ही फिल्म खत्म होती है ना, फिल्म बंद मत किया करो, क्योंकि वहां पे एक एंड टाइटल्स नाम की चीज होती है, वो देखा कीजिए। तो वो सब लोगों ने उस एक फिल्म के लिए, एक वेब सीरीज के लिए, एक इसके लिए काम किया होता है, और खुद का नाम वहां देखना या लोगों ने अपना नाम वहां देखना एक अलग प्रकार का ड्रीम है, एक अलग प्रकार का इमोशन है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, राइटिंग डिपार्टमेंट है, अगर आपको राइटिंग में रुचि है तो आप राइटिंग डिपार्टमेंट ये कर सकते हैं। फिल्म बनती ही पेपर पे है, हम तो कहते हैं फिल्म बनती पेपर पे है, शूटिंग इज अ फॉर्मेलिटी। तो आप वहां से एक शुरुआत कर सकते हैं। आप एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ये तो मतलब मैं, आप किसी को भी एक्टर बनना है तो ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स करना, इंस्टीट्यूट्स में जाना, ट्रेनिंग लेना, पेज करना। एक एक ग्रुप में विनीत सोनावने पूछते हैं, सर एक्टर कैसे बने? सर एक्टर बनने के लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको अगर एक्टर बनना है ना, तो सबसे पहले अपना ध्यान रखना सीखो। स्टार्ट ईटिंग गुड, स्टार्ट स्लीपिंग वेल, स्टार्ट वॉचिंग गुड थिंग्स, वॉच फिल्म्स, वॉच वेब सीरीज। पूरी दुनिया में क्या प्रकार का कंटेंट बनाया जा रहा है वो देखो, वर्कशॉप्स करो, गेट अंडर अ मेंटोर हु कैन टीच यू, क्योंकि आप फिर आपकी लैंग्वेज, भाषा से लेके आपके बॉडी लैंग्वेज तक, आपको सब पहलुओं पे काम करना पड़ता है। आपको किस प्रकार का एक्टर बनना है, आपको किस प्रकार के कथाओं में रुचि है, ये आपको ढूंढना है। एक एक्टर के लिए एक आवाज भी अच्छी होनी जरूरी है। तो ये सब मेंटोरिंग है भाई, ये मेंटोरिंग करना पड़ता है, ये मेंटोरशिप लेनी पड़ती है। एक एक्टर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सुबह बिस्तर से उठे, अच्छे कपड़े पहने और ऑडिशंस के लिए निकल गए और आप एक्टर बन गए, ऐसा नहीं है। सर, बीइंग एन आउटसाइडर, इज इट डिफिकल्ट टू एंटर? नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट। प्लीज मैं इस सवाल पे आता हूँ, लेकिन एक्टर बनने के लिए एक मेंटोर का हाथ पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटोर का हाथ पकड़िए, उसके साथ काम कीजिए, उसकी वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, उसके स्टार्ट बिलीविंग इन व्हाट ही इज टीचिंग। पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आप अब बाहर जाओगे तो आपके सामने एनएसडी का भी एक्टर आने वाला है।
जो बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ के और बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आया होता है। शायद आपको एनएसजी में एडमिशन नहीं मिली है, दैट्स ओके, बट यू हैव टू टेक सम फॉर्मल ट्रेनिंग टू बिकम एन एक्टर। ओके, being an outsider is basically a very stupid thing to feel. What I feel, there is no outsider insider in this. Nepotism कहाँ नहीं है? Nepotism सब जगह है। Nepotism आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी है। आज ऐसा नहीं है ना भाई कि मुकेश अंबानी का बेटा कल पंक्चर की दुकान निकालेगा, नहीं, मुकेश अंबानी का बेटा रिलायंस ही संभालेगा, होटल वाले का बेटा होटल जाके देखता है। अब जो नहीं देखता है, जो दूसरे इंडस्ट्री में आता है, उसको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई नेपोटिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं नेपोटिज्म है नहीं है, आउटसाइडर इनसाइडर ऐसा कुछ नहीं है। आप में कन्विक्शन है, आप में वो बिलीफ है, आप में वो एनर्जी है, और आप में वो सस्टेनिंग पावर है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सब। तो आप इस इंडस्ट्री में वेलकम हो। यहाँ पे कोई आउटसाइडर इनसाइडर नहीं है। संजय लीला बंसल एक ऐसा नाम है, विधु विनोद चोपड़ा एक ऐसा नाम है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ये होते हैं। तो अगेन, फॉर्मल एजुकेशन, कोई भी डिपार्टमेंट में आपको काम करना है तो आपको फॉर्मल एजुकेशन लेना, भले वो 8-8 दिन के 10-10 दिन के आपने साल में 5 वर्कशॉप किए हो, लेकिन आपको या फिर किसी इंस्टीट्यूट में आपको जाना हो, वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नजरिया मिलता है। Yes, Ojas. ओके सर, थैंक यू सर। सर, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगर हमें एक मूवी बनानी है, उसके लिए हमें किस तरह शुरुआत करनी होगी? एक मूवी बनानी है तो आपको एक सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी होगी कि आपको एक अच्छी कहानी लिखनी होगी। अब अच्छी, बुरी, बकवास, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, ये आप सी कैसा है ना, there's a saying in Malayalam, a crow finds his kids white and beautiful always। तब मैं जो भी कहानी लिखता हूँ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन वो कहानी आपके जो लोग पहचान वाले नहीं है, उनको सुना के देखो उनकी क्या रिएक्शन है। ऐसे लोग जमा करो, कि ये सब मार्केटिंग में सिखाया जाता है, उसको सैम्पलिंग बोलते हैं। वो सैम्पलिंग करो, ट्राई टू गेट अ पर्सपेक्टिव ऑन द स्टोरी। देन अगर फिल्म बनानी है तो उठ के मोबाइल लेके आप शॉट्स लेके मोबाइल पे एडिट करोगे और फिल्म बनाओगे, ये नहीं है। सबसे पहले मैं एक ही बता देता हूँ कि टिकटॉक, टकाटक, इंस्टाग्राम की रील्स, ये फिल्म नहीं है। किसी और ने बोले हुए रिकॉर्डेड डायलॉग्स पे अपना लिपसिंग करना, ये एक्टिंग नहीं है। सो आप ये पहले दिमाग से निकाल दो कि मैं टिकटॉक के वीडियोस बनाता हूं तो मैं फिल्म बना सकता हूं। हाँ बिल्कुल, आप बना सकते हो, लेकिन वो फिल्म नहीं, ये आप जान लो। फॉर्मल ट्रेनिंग लो, अच्छा एक प्रोडक्शन प्लान बनाओ, उस पे खर्चा कितना है, और सिर्फ प्रोडक्शन प्लान नहीं, वहां पे एक रिकवरी प्लान होता है, वो सीखो। ये सब आपको फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के बाद ही आता है ना, उससे पहले कैसे आएगा। सो एक फिल्म बनाने के लिए अच्छी फिल्म स्क्रिप्ट लिखो, अच्छा क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मल ट्रेनिंग लो, अच्छा डायरेक्शन क्या है, अच्छी सिनेमेटोग्राफी क्या है, म्यूजिक कौन सा अच्छा है, क्या है, ये सब देखो, पहले देखो। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, पहले देखो। यस ओजस। ओके सर, थैंक यू सर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इस फील्ड में ऐसी कौन सी प्रोफेशन है जिसमें इनकम की मिलने की गारंटी है? इस प्रोफेशन में इनकम की गारंटी कन्विक्शन है, इनकम की गारंटी परसिवियरेंस है, इनकम की गारंटी पेशेंस है, इनकम की गारंटी आपका इस प्रोफेशन के इसमें ट्रूथफुलनेस, ये है। पैसा तो मिलता ही है भाई, पैसा आज गवर्नमेंट सर्विस में भी मिलता है, एडवर्टाइजिंग में भी मिलता है,
मैन्युफैक्चरिंग में भी मिलता है। और पैसे की गारंटी ऐसी है कि भाई ये है ना कि जैसे मैंने बोला कि ये तो वी आर ड्रीम मर्चेंट्स। सो पैसा, good work gives you good money. So firstly, uh, try doing some good work. Money will follow, and it does. Money does follow. So think about good work first rather than good money, because this is one industry which is not going to fetch you money fast. Very, very, very clearly, I'm telling you. ओके सर, थैंक यू सर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से बाकी फिल्म इंडस्ट्री के करियर पर कुछ इफेक्ट हुआ है क्या, और अगर हुआ है तो किस प्रकार का? See, OTT के वजह से फिल्म्स पे अफेक्ट नहीं हुआ है ये कहना मुझे झूठ बोलने जैसा होगा। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए सब लोग, उस अंधेरे कमरे में जाकर उस 70 mm पे एक फिल्म देखने का एक्सपीरियंस जो है वो ओटीटी नहीं दे सकता। Watching a film is an experience. Watching a film like 83 is an experience. Watching a film like Avatar, watching a film like Batman, watching a film like Jungle Book, watching a film like, let's say, Dunkirk, watching a film like Tenet, watching a film like... so watching basically a film is an experience. Yes, अब हुआ ये है कि हम कहते हैं ना कि 21 दिन आप कोई भी चीज करो तो उसकी आदत लग जाती है। तो हमें तो यार इस कोरोना ने 2 साल की आदत लगाई है कि सब घर पे बैठ के प्लेटर पे मिल रहा है। लेकिन जब थिएटर्स खुलेंगे, धीरे धीरे फिल्म देखने लोग आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि फिल्म एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। फिल्म इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है, फिल्म व्यूइंग इंडस्ट्री में नहीं बोलूंगा, लेकिन फिल्म व्यूइंग मैनेज हुई है, अफेक्ट हुई है, क्योंकि अब लोगों को घर पे बैठ के खुद के कंफर्ट जोन में बैठ के चीजें देखने का मजा, शेर के मुंह को खून लग चुका है। लेकिन फिल्म देखने जरूर लोग आएंगे। अफेक्ट हुआ नहीं है ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, अफेक्ट हुआ है, लेकिन इससे भी हम उभरेंगे। Okay, sir. Thank you, sir. So now we move to our next question. The question is that न्यू एजुकेशन पॉलिसी से फिल्म इंडस्ट्री इस फील्ड के करियर पर कुछ इफेक्ट होगा क्या? मुझे नहीं लगता। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी एजुकेशन लो, एजुकेशन लेके आप इस इंडस्ट्री में आओगे तो ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। आप any kind of any faculty of education gives you a better perspective in this industry. So मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिसी से या कोई ये हो के आपके कन्विक्शन पे कोई फर्क, ये मतलब ज्यादा अफेक्ट होगा। यहाँ पे आके यहाँ की पॉलिसीज अडॉप्ट कर लो, यहाँ के परसेप्शंस अडॉप्ट कर लो, इट विल बी एन इजी लाइफ फॉर यू। सिंपल। Yes, moving on. ओके सर, थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें मार्गदर्शन किया है। आपको किसी को कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर एक एक करके अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर, some questions has come in comment section. Yes. The first question is that, sir, what are the compulsory courses to get into film industry? Okay. There are no compulsory courses to get into film industry. You will have to look for what area of interest is you are into, and then you will have to choose a course. Like if you have if you have an inclination towards acting, there are acting schools, there are acting workshops. If you're inclined toward direction, there are direction workshops, there are direction this. And there are a lot of workshops which are happening. There are a lot of formal courses which are happening around the world. Google them, try to get information. But yes, there is formal education which is needed. So just आपको एक inclination आपका ढूंढना है and उसका formal education लेना है. Okay, sir. So our next question is that
What to do after film school? Work, get on a Sir. set, Yes, work, sir. Yes, and sir. assist people. Uh, see, getting work for a freelancer is already also an everyday job. So work. Yeah, Ojas. So another question is that, sir, I am interested in makeup and hair. So which Hmm. course to do with academy? Okay, there are a lot of makeup and hair courses available in and around Mumbai, which are professional filmmaking makeup courses. I think Lakme का भी Lakme salon का भी certified course है. वहाँ पे जाके आप 6 महीने या 8 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, वो आप करिए. एक अच्छे मेकअप डायरेक्टर के साथ जुड़ जाइए असिस्टेंट करके, एंड यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव कि ऑन सेट क्या होता है. तो लैक्मे का है शायद, जस्ट गूगल इट, मेकअप है, मेकअप कोर्सेज हैं, बिल्कुल है. Okay, sir. Sir, tell us about Gondia web series, sir. Rather than telling about Gondia, you log into Z5 and watch the 10 episodes. I would be more than happy if you could do that. Sir, in this online new world, is it good to upload video on Reels or YouTube? Uh, yes, it is. It is a very good opening for your expression to be viewed, expression to be seen. But just be careful. Once your content is on the web, it's on the web for lifetime. It is floating somewhere or the other. So what are you putting into Reels and what are you putting into YouTube is what you have to be really careful about. Okay, sir. So one more question has come. Sir, बड़े बड़े एक्टर जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, एक्सेट्रा, उनके ऐसा करियर हमारा होगा क्या? क्यों नहीं होगा भाई? मतलब वो बड़े ऐसे नहीं बने ना. शाहरुख खान has worked his ass out to be here. Salman Khan has gone into auditions. भाई सुपरस्टार कोई एक रात में नहीं बनता है. आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, और अब जो भी जिसने किसी ने आपको ये बताया है, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए. हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. सो हार्ड वर्क करो, आप जरूर बनोगे यार. अब हार्ड वर्क तो करो एंड लेट एवरीथिंग फॉलो ना. बाकी का बाद में देखा जाएगा. हार्ड वर्क तो करो. फर्स्ट गेट इनटू फर्स्ट स्टार्ट लाइकिंग व्हाट यू आर डूइंग, देन दैट थिंग विल लाइक यू नो. Okay, sir. सिनेमाटोग्राफी सीखने के लिए एफटीआई में अप्लाई करिए. एफटीआई का और एसआरएफटीआई का इंफॉर्मेशन और एफटीआई का इंफॉर्मेशन गूगल पे है. उनका एंट्रेंस एग्जाम दे के आप वहां पे सीख सकते हो. Thank you, sir. Sir, some more questions are there. Sir, Actor who can you state difference between a cinematographer and a director? Yes, director is the brain of the film. Cinematography is the eyes of the film. So what I visualize in my head, a cinematographer creates the visual according to my perception. So there is no difference between a cinematographer and a director. We are like husband and wife to a visual. Sir, what are your views about the background dancers and backstage workers who work in film industries? Without them, we are non-existent. Thank I you so much. cannot be myself without my spot boy being beside me. And my visuals cannot look beautiful because without the background dancers who work their sweat and blood, and who are better dancers, of course, because they're trained dancers, and they're beautiful. They make my visual look very beautiful. Thank you so much, sir. You're welcome. So one more question is there. People who are still studying as well as acting, how do they manage both the things? Doesn't one of it get affected? No, I started assisting my boss when I was 18. I was assisting and completing my education. So you have to basically compartmentalize your
brain and set your priorities. So I used to give my exams. I used to study and give exams and tell my boss that time that I have exams and I have to appear for my paper. So nobody is so cruel in this world that they'll stop you from getting educated. Both things can be very well managed. I'm 36. I started working when I was 18 with my boss. Okay, sir. Thank you, sir. So one more question. I want to be a cinematographer. So what I have to do? I told you, watch, apply for a good course. If you get through, very good. Start learning still photography first. Start learning compositions first. Start learning about a visual first. Then things can be looked after. Go to an institute, apply. If you don't get through, go to any cinematographer. Try your networking, get through, and ask him for work as an intern. गुड सर. Good evening. सर, एक एक्टर और डायरेक्टर आपके नजरिए से क्या होता है? मतलब हम किसे कह सकते कि ये प्रोफेशनल एक्टर है और एक प्रोफेशनल डायरेक्टर है? एक एक्टर और एक डायरेक्टर ये है जो एक जरिया है जो एक्टर है, और एक सोच है जो डायरेक्टर है. तो प्रोफेशनल एक्टर, नॉन प्रोफेशनल एक्टर ऐसा कुछ नहीं होता भाई. वी ऑल आर एक्टर्स, वी ऑल आर इन प्रिटेंडेंस. हम जो भी चीज अभी यहाँ पे कर रहे हैं वो सब प्रिटेंडेंस है. वो प्रिटेंडेंस जो स्टोरी के लिए यूज किया जाता है, आपके सामने मेकअप लगा के और अच्छे कपड़े पहन के या बुरे कपड़े पहन के आके वो जो एक जरिया बनता है वो एक्टर है, और जो सोच है एक कहानी आपके सामने लाने की वो डायरेक्टर है. ओके, थैंक यू सर. यू आर वेलकम प्रतीक. So one more question. So most of the times parents does not support for this profession even after telling them, and what can be done? Make them sit in front of you. Tell them why you want to do this. Tell them the reality behind this world. क्योंकि क्या है, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कास्टिंग काउच है, ये है वो है. भाई ये सब जगह है, अपना दिखता है. आज कॉर्पोरेट में भी यही है, मैनेजमेंट में भी यही है, एडवर्टाइजिंग में भी यही है, बैंकिंग में भी यही है. सब जगह पे इंसान है, वहां पे ये है. इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री एक बुरी जगह है. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, and you will have to make them sit in front of you, tell them, talk to them why you want to do this, and after completing your education, why are you not enjoying what you have done as an education. You will have to sit in front of them and explain it to them. Simple. Okay. हेलो सर, ये भी हाँ अंजलि, मैं कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ आपसे. बोलिए. जैसे कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, तो मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए मना करती है. मतलब वो सपोर्ट नहीं करती. वो बोलती है कि तू लड़की है, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज लड़कियों को इस चीज़ सक्सेस नहीं मिलती. ये तो कुछ अच्छी बात नहीं है. तो मैं क्या करूँ अपनी फैमिली को, कैसे बताऊँ कि ये नहीं है, ऐसे ही गलत है, क्या करना चाहिए? आपको ना उनको सामने बिठा के बेसिकली सबसे पहले आपको ये उनको प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी मैं कर रही हूँ सिक्योर्ड है, जो भी मेरी सोच है वो सिक्योर्ड है. आपको उनको एग्जाम्पल्स देके, अनफॉर्चुनेटली अंजलि आपको एग्जाम्पल्स देके बताना पड़ेगा कि जैसे आज उर्मिला का एग्जाम्पल है, दीपिका का एग्जाम्पल है, रिचा चड्डा का एग्जाम्पल है, या फिर ऋषिता है जो मेरी फिल्म की हीरोइन थी, ऋषिता का एग्जाम्पल है. आपका मन दूसरी जगह नहीं लग रहा और आपको यही करना है, ये कन्विक्शन से बैठ के आपको बताना पड़ेगा. जैसी बुरी चीजें दिखती हैं वैसे बहुत सारी अच्छी चीजें भी इस इंडस्ट्री की हैं. वो आपको उनके सामने, यू विल हैव टू सर्व दिस ऑन देयर प्लेटर. और लड़का लड़की ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता बहना. प्लीज डोंट get into all of this shit, and you are a human, and we are all one. And if you are an artist, you are an artist. Nobody can stop you from being that, not even God. Thanks sir. What You're advice? welcome. So one more question. सर सिनेमाटोग्राफी सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट का नाम सजेस्ट करिए. मैंने बोला ना, FTI है सर, FTI है, उसकी एंट्रेंस है. वहाँ पे स्पेशलाइज्ड 3 साल का कोर्स है सिनेमेटोग्राफी.
ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया है। मैं ऋतिक एबीवीपी भिवंडी महानगर की तरफ से आपका और सारे स्टूडेंट्स का आभार मानता हूँ। आज के वेबिनार की तरह ऋतिक, एक मिनिट, ऋतिका कांबळे has some question. काय क्वेश्चन आहे? What is your question? What if we did makeup artist course, then that's it, and after that I enter film industry, that be a successful? Yes, it can be. I told you, once you do a course, uh, join your hands with some makeup director, work with him for a year or two, and then you can start doing an independent job. It's a very beautiful career. मेकअप के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है. Yeah, before we sum up, I would और ज्यादा हेल्प मिल सके, आपकी कोई यूट्यूब चैनल जिससे हमें और भी ज्यादा हेल्प मिल सके, YouTube चैनल जिससे हमें और भी हेल्प मिल सके. यार, YouTube is all about health. स्टूडियो बाइंडर के चैनल्स है, वहां पे जाके उनकी वीडियोस देखो. You will get to know a lot of things about it. And if you want, you can take down my email ID. I am going to start a direction and acting 1 week acting direction course for people of your age, because I would be starting one of my projects post COVID. So let's see. मैं ओजस को सब डिटेल्स भेज देता हूँ. And my email ID is ankur.katkar@gmail.com. ankur.kakatkar@gmail.com. You can Google me. That's my spelling, and it's at gmail.com. Yes, तर मी काय बोला. म्हणतो हम्म. की म्हणजे आपण कसं आता मोठे मोठे ऍक्टर्स त्यांच्यासारखे आपल्याला फेम मिळू शकते का? का नाही मिळू शकत रे त्यांच्यासारखी राजा? अर्निंग्स आणि त्यांच्यासारखं नाव त्यांच्यासारखे म्हणजे कष्ट एकदम कर ना. हा ना. त्यांच्यासारखे कष्ट कर. हो, तेच तुम्ही आता म्हणाले हार्डवर्किंग पाहिजेच. हम्म. म्हणजे भेटू शकतो का नाही, आणि तसे पण घरचे खूप प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे अडवतात, जाऊन काय करशील, मग काय आधी आहे माझं याच्यात, तेच. त्याच्यात माझं काय नाही. हे बघ, ह्याच्यात काही नाही, त्याच्यात काही नाही, बरोबर आहे. मग तू उद्या जर सायकल रिपेअरिंगचं दुकान काढलंस तरी तुला स्ट्रगल आहेच ना पहिल्यांदा. हो, मी पण ते म्हणू शकतो, बरोबर काय आहे. ठेवलंय सायकल रिपेअरिंगच्या दुकानामध्ये, कोण येणार तुझ्याकडे, असं म्हणायला मी पण म्हणू शकतो रे. पण माझं तेच म्हणणं आहे, पहिले हार्डवर्क तर करा, नंतर बघू ना काय. सगळं तरी फॉलो पण होतं, होऊ एकदा शकतो ना हार्डवर्क. सर? का नाही होऊ शकत? हार्डवर्क तर करा, नक्कीच होऊ ठीक आहे, शकतं. अरे थँक्यू मी सर. बसलोय ना समोर. हा, मग तरी पण म्हणजे घरचे टोकतात की काय करशील याच्यात जाऊन, म्हणजे असे म्हणजे बरेच रुकावट आहेत. काय याच्यात काही नाही, एक फिल्म भेटली तर दुसरी नाही भेटू शकत, एका याच्यावरच नाव वगैरे, म्हणूनच. आता एक सायकल रिपेअरिंग आली की उद्या दुसरी येणार, जे असं शाश्वती घरच्यांमध्ये, आणि सायकलचं दुकान काढू शकतो मग आपण. असं नसतं अरे, ना, अच्छा, बरोबर ना? अंकुरजी ठीक आहे. नमस्ते. नमस्कार, बोला. गोंद्या आला रे आला ही कलाकृती पाहून एकदम छान वाटलं. असंच भविष्यात कुठल्या अजून आपलं स्वातंत्र्य संग्रामातील अज्ञात व्यक्तींबद्दल काही भविष्यात काही येणार की नाही? माझा संपूर्ण विनायक दामोदर सावरकरांवर रिसर्च रेडी आहे. त्यांच्यावर माझे 10 एपिसोड लिहून झालेले आहेत. कधीही न पाहिले टिळक असा एक विषय आहे ज्याच्यावर माझा रिसर्च झालेला आहे. आणि एक खूप सुंदर वेब सिरीज वर आता मी काम करतोय, ती हिंदीमध्ये येईल, आणि त्याचं मी आता डिटेल्स आउट नाही करू शकत, कारण मी काय म्हणतो ना, अग्रीमेंट. त्यामुळे पण लवकरच खूप सुंदर वेब सिरीज तुम्हाला बघायला मिळेल. दॅट इज माय गॅरंटी, सुशांत. नक्कीच आम्हाला आवडेल पाहायला. धन्यवाद. गोंदिया येस, आले. थँक्यू. Okay, sir, thank you, sir. So your given guidance is very useful for us, sir. Same here. I had a lovely time talking to all of you. Sir, tell us how to audition. That is a process which you would learn in, because that is a process which needs continuous working. It is not just about auditioning, and it is about learning a lot of the dynamics about it. So माझी एक स्टुडंट आहे, ऑलरेडी जॉईन झाली आहे, योगदा जॉईन झाली आहे इथे. सो योगदा माझं मोबाईल फिल्म मेकिंगचं वर्कशॉप आता करते आहे, आणि पुढचं आम्ही ऍक्टिंगचं पण वर्कशॉप करणार आहोत.
सो ज्यांना कोणाला इंटरेस्ट असेल त्यांनी मला मेल करून ठेवा किंवा ओजसला सांगून ठेवा. मी ओजसच्या संपर्कात येईन आणि आपण काहीतरी करू ना छान. नक्की करू. वाय नॉट. चालेल ना ओजस तुला? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला चालेल ना? येस सर. येस. बोला. ओके सर. थँक यू सर फॉर युअर गायडन्स. And now the webinar is completed. So now everyone can live. थँक्यू सो मच अँड लेट्स बी इन टच. कुठल्याही प्रकारे काहीही कुठलाही गायडन्स लागला आहे ankur.pakatkar@gmail.com इज माय ईमेल आयडी. प्लीज डू गेट इन टच आणि मी पर्सनली रिप्लाय करीन. माझे कोणी मॅनेजर नाही.